دوستو، آج جو داستان میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کسی کتاب کا افسانہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے میرے ایک بہت قریبی دوست نے مجھ تک پہنچایا۔ یہ واقعہ اس کے سگے چچا کے ساتھ پیش آیا، ایک ایسا واقعہ جس نے ہستی بستی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ویران کر دیا۔ اب اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا، اس کا فیصلہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن جس طرح یہ قصہ سنایا گیا اس کی ہولناکی روح تک کو لرزا دیتی ہے۔ یہ کہانی صرف خوف کی نہیں بلکہ مجبوری، محبت اور ایک غلط فیصلے کی کہانی ہے جس کی قیمت نسلیں بھی نہیں چکا پاتی۔ تو آئیے میں آپ کو اس گاؤں میں لے چلتا ہوں جہاں یہ سب شروع ہوا۔ یہ رحیم بخش کی کہانی ہے، ایک سیدھا سادہ محنتی درجی جس کی دنیا اپنی چھوٹی سی دکان، ایک وفادار بیوی زینب اور دو پھول جیسے بچوں، بیٹے علی اور بیٹی فاطمہ کے گرد گھومتی تھی۔ اس کی دکان گاؤں کے کونے میں ایک پرانی سی عمارت میں تھی جہاں ایک ہی سلائی مشین کی کھٹکھٹ دن بھر گونجتی رہتی۔ غربت نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے، مگر قناعت اور محبت کی چادر نے اس غربت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ رحیم بخش کا سارا دارومدار عید کے سیزن پر ہوتا تھا، وہ دن جب گاؤں کے لوگ نئے کپڑوں کی فرمائش لے کر آتے اور اس کی مشین رات دن چلتی۔ انہی دنوں کی کمائی سے سال بھر کا چولہا چلتا تھا، بچوں کی چھوٹی موٹی خواہشیں پوری ہوتی اور زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی طرح چلتی رہتی۔ اس سال رمضان کا چاند خوشیوں کی نوید لے کر آیا تھا۔ اللہ کے کرم سے رحیم بخش کے پاس کام کا اتنا انبار لگ گیا تھا کہ اس نے گاؤں کے 4 اور کاریگروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ دکان میں رات دن کام ہو رہا تھا۔ رحیم بخش کی آنکھوں میں امید کے ہزاروں دیے جل رہے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے علی سے وعدہ کیا تھا کہ اس عید پر وہ اسے چمکتی ہوئی نئی سائیکل لے کر دے گا اور اپنی ننھی فاطمہ کو ایک بڑی سی گڑیا جس کے بال سنہرے ہوں۔ بچے روز اپنے باپ سے پوچھتے، ابا عید کب آئے گی؟ اور وہ مسکرا کر کہتا، بس چند دن اور، پھر دیکھنا تمہارے ابا تمہارے لیے کیا لاتے ہیں۔ 24 روزے گزر چکے تھے، دکان میں سلے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر لگے تھے، ادھکانش جوڑے تیار تھے، بس آخری چھانٹی باقی تھی۔ رحیم بخش اور اس کے کاریگر تھکے ہوئے تھے مگر ان کے چہروں پر اطمینان تھا۔ کل سے لوگوں نے اپنے کپڑے لینے آنا تھا۔ وہ رات جب رحیم بخش دکان کا شٹر گرا کر گھر لوٹا تو اس کا دل خوشی سے لبریز تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ صبح سب سے پہلے کاریگروں کو ان کی مزدوری دے گا اور پھر بچوں کے تحفوں کے لیے شہر جائے گا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 25ویں روزے کی صبح جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ دکان کا شٹر ایک طرف سے اکھڑا ہوا تھا اور تالا ٹوٹ کر زمین پر پڑا تھا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے ڈھک سے رہ گیا۔ وہ بھاگ کر اندر داخل ہوا اور جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کی دنیا تاریک کر دی۔ دکان خالی تھی، بالکل خالی، نہ کپڑوں کا کوئی تھان، نہ سلے ہوئے جوڑوں کا ڈھیر اور نہ ہی وہ 5 سلائی مشینیں۔ دیواریں ایسے لگ رہی تھیں جیسے وہ اس کا منہ چڑھا رہی ہوں۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور ایک بے آواز چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح جھار و قطار رونے لگا۔ اتنے میں باقی کاریگر بھی آ گئے اور دکان کی حالت دیکھ کر ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جن لوگوں کے کپڑے تھے وہ ایک ایک کر کے جمع ہونے لگے۔ پہلے تو ہمدردی جتاتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے لہجے بدلنے لگے۔ رحیم بخش، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ ہمیں عید پر پہننے ہیں، ایک نے کہا۔ ہمیں کپڑے نہیں چاہیے، ہمارے پیسے واپس کرو، دوسرا چلایا۔ رحیم بخش نے ہاتھ جوڑ کر منتیں کیں، بھائیو مجھ پر رحم کرو، میں لٹ گیا ہوں، میں غریب آدمی کہاں سے اتنے پیسے لاؤں گا؟ میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، مگر لوگوں کی بھیڑ میں انسانیت اکثر کھو جاتی ہے۔ اس کے اپنے کاریگر بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، دکان تو اس کی تھی، ذمہ دار بھی یہی ہے، ہماری تو مشینیں بھی چلی گئیں، یا تو ہمیں ہماری مشینیں واپس دلائے یا ان کے پیسے دے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے فیصلہ سنایا کہ رحیم بخش کو عید کے دن تک کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اس نے سب کے پیسے واپس نہ کیے تو اس کے گھر پر قبضہ کر لیا جائے گا اور اس کے بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ سن کر رحیم بخش پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ایک شریف اور عزت دار آدمی تھا، یہ ذلت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چلا۔ راستے میں اسے علی کی سائیکل اور فاطمہ کی گڑیا یاد آ رہی تھی۔ وہ وعدے جو اس نے اپنی اولاد سے کیے تھے کانٹوں کی طرح اس کے دل میں چبھ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔
ज़ैनब उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ गई कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। उसके बार बार पूछने पर रहीम बख्श फट पड़ा और रोते हुए सारी कहानी सुना दी। उसने तंग आकर एक खौफनाक फैसला किया। उसने सोचा कि ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है जहां इज्जत ही न रहे। रात के अंधेरे में वह चुपके से घर से निकला और गांव के बाहर बहने वाले दरिया के किनारे जा पहुंचा। पानी का तेज बहाव उसे अपनी तरफ बुला रहा था। उसने सोचा बस एक छलांग और सब कुछ खत्म। मगर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसे फातिमा का हंसता हुआ चेहरा और अली की मासूम बातें याद आ गईं। उसके कदम रुक गए। मेरे बाद इनका क्या होगा? मेरी बीवी को लोग जीने नहीं देंगे। ये सोचकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह वहीं बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था कि उसे अपने पीछे एक भारी और गूंजदार आवाज सुनाई दी। बेटा, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। इनसे भागकर मौत को गले लगाना बुज़दिली है। रहीम बख्श ने चौंक कर पीछे देखा। काले लिबास में मलबूस एक तवील कामत बुजुर्ग खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, दाढ़ी सफ़ेद थी, मगर सबसे अजीब और खौफनाक चीज़ उसकी दाहिनी आंख थी। वह आंख पत्थर की थी, बेनूर और साखित, जो अंधेरे में भयानक लग रही थी। रहीम बख्श ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें हमदर्दी से ज़्यादा कोई गहरा राज छुपा था। मैं कौन हूँ यह अहम नहीं, अहम यह है कि मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। तुम्हारी दुकान, तुम्हारा कर्ज और तुम्हारी बेबसी, मुझे सब मालूम है। रहीम बख्श हैरत से उसे देखने लगा। मगर आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? हर मसले का हल होता है बेटा, बुजुर्ग ने पुरअसरार लहजे में कहा। खुशियाँ खरीदी नहीं जाती, उन्हें हासिल करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। बाबा जी, मैं पहले ही बहुत टूटा हुआ हूँ। मुझे आपकी पहेलियाँ समझ नहीं आ रही। खुदा के वास्ते अगर कोई हल है तो बता दें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रहीम बख्श की आवाज़ में इल्तिजा थी। बुजुर्ग उसके करीब आया और धीमी आवाज़ में बोला, एक अमल है, 41 रातों का चिल्ला, एक ऐसा अमल जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तुम्हें गांव के पुराने कब्रिस्तान में एक बहुत पुरानी कब्र तलाश करनी होगी, जिसके पास एक पुराना घना दरख्त हो। तुम्हें उस दरख्त के नीचे बैठकर 41 रातों तक एक वजीफा पढ़ना होगा जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये सुनते ही रहीम बख्श के जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। कब्रिस्तान में? नहीं बाबा जी, ये मुझसे नहीं होगा। बुजुर्ग ने कंधे उचकाए। कोई जल्दी नहीं, सोच लो, तुम्हारे पास ईद तक का वक्त है। मैं कल रात फिर यहीं मिलूंगा। अगर इरादा बदल जाए तो आ जाना, वरना ये दरिया तो कहीं नहीं जा रहा। ये कहकर बुजुर्ग अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। रहीम बख्श कांपते हुए वजूद के साथ घर लौट आया। चांद रात आ चुकी थी। दरवाजे पर कर्ज ख्वाहों ने आकर आखिरी धमकी दी कि कल सुबह अगर पैसे न मिले तो घर खाली कर देना। बच्चे जब रोते हुए अपने तोहफों का पूछने लगे तो रहीम बख्श का दिल कट कर रह गया। उसके सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो जिल्लत की जिंदगी या फिर वो खौफनाक रास्ता जो उस पुरअसरार बुजुर्ग ने दिखाया था। उसने दूसरा रास्ता चुनने का फैसला कर लिया। वो दरिया की तरफ भागा। बुजुर्ग वहीं उसका मुंतजिर था, जैसे उसे यकीन था कि रहीम बख्श जरूर आएगा। मैं तैयार हूं बाबा जी, रहीम बख्श ने हाँफते हुए कहा। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। बाबा शोला शाह, जैसा कि उसने अपना नाम बताया, कि पत्थर की आंख में एक अजीब सी चमक उभरी। उसने कहा, कीमत तो चुकानी पड़ेगी बेटा, बहुत भारी कीमत। बाबा शोला शाह की बात सुनकर रहीम बख्श का दिल एक लम्हे को कांपा, मगर बीवी बच्चों को बेघर होने के तसव्वुर ने उसके खौफ पर काबू पा लिया। उसने कहा, बाबा जी, मुझे बस इतना वक्त दे दें कि मैं अपने बीवी बच्चों को किसी महफूज जगह मुंतकिल कर दूं। मैं नहीं चाहता कि गांव वाले उनकी बेइज्जती करें। बाबा मुस्कुराया, फिक्र न करो, पास ही जंगल में मेरी एक पुरानी झोंपड़ी है, तुम लोग वहां रह सकते हो। मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, आज यहाँ तो कल वहाँ। अगले ही दिन रहीम बख्श अपनी बीवी और बच्चों को लेकर उस झोंपड़ी में आ गया। वो एक वीरान और बोसीदा जगह थी। हर तरफ मकड़ी के जाले और गर्द की तह जमा थी। ज़ैनब ने घबराकर पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? रहीम बख्श ने उसे तसल्ली दी कि उसे शहर में एक बड़ी फैक्ट्री में रात की नौकरी मिल गई है और कुछ दिन उन्हें यहीं गुजारा करना पड़ेगा। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो सारा दिन बाबा शोला शाह के साथ रहा और उससे वो अजीब व गरीब वजीफ़ा और अमल के उसूल सीखे। बाबा ने उससे सख्ती से ताकीद की, बेटा, चंद बातें पत्थर पर लकीर की तरह याद रखना। अमल मंगल की रात से शुरू होगा। जिस जगह बैठो
वहाँ अपने गर्द चाकू से एक दायरा यानी हिसार खींच लेना। अमल के दौरान कुछ भी हो जाए, उस हिसार से बाहर कदम मत रखना। तुम्हें डरावनी शक्लें नजर आएंगी, खौफनाक आवाज़ें सुनाई देंगी, मगर याद रखना वो सब नज़र का धोखा होगा। हिसार के अंदर तुम्हें कोई चीज़ छू भी नहीं सकती, लेकिन अगर तुम डर कर भाग गए या अमल बीच में छोड़ दिया तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। उस रात रहीम बख्श ने गांव के पुराने मतरूका कब्रिस्तान का रुख किया। वो कब्रिस्तान जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ रात को जिन्नात और बदरूहें बसेरा करती हैं। टूटी फूटी कब्रों और झाड़ियों से गुजरते हुए उसको आखिरकार एक ऐसी ही कब्र मिल गई जो बहुत पुरानी थी, और उसके सरहाने एक बरगद का विशाल घना दरख्त खड़ा था जिसकी शाखें कब्र पर साया किए हुए थीं। उसने जगह साफ की और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगली रात मंगल की थी। आधी रात को जब सारा आलम सो रहा था, रहीम बख्श अपना सामान लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आहट भी उसे खौफजदा कर रही थी। एक बार उसका दिल चाहा कि वापस लौट जाए, मगर अली और फातिमा के चेहरे आंखों के सामने आते ही उसने हिम्मत पकड़ी। वो अपनी मुंतखब करदा जगह पर पहुंचा, हिसार खींचा और आंखें बंद करके वजीफा शुरू कर दिया। रात के 3 बजे तक अमल जारी रखना था। पहली रात सुकून से गुजर गई, कुछ भी गैर मामूली नहीं हुआ। वो घर लौटा तो उसके दिल को कुछ इत्मीनान हुआ कि शायद ये इतना मुश्किल काम नहीं। अगले दिन जब वो बाबा से मिला तो उसने यही बात कही। बाबा शोला शाह हंसा, बेटा ये तो बस शुरुआत थी। मेहमान एकदम से तो घर में दाखिल नहीं होते। जैसे जैसे रातें गुजरेंगी उनकी मौजूदगी बढ़ती जाएगी, बस हिम्मत न हारना। दूसरी रात जब वो अमल के लिए बैठा तो कुछ देर बाद उसे अपने अर्द गिर्द किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फिर किसी औरत के सिसकियाँ लेने की आवाज़ आने लगी। तीसरी रात उसे घुंघरुओं की छन छन सुनाई दी, जैसे कोई उसके हिसार के गर्द चक्कर लगा रहा हो। हर रात खौफ का साया गहरा होता जा रहा था, मगर रहीम बख्श ने हिम्मत नहीं हारी। एक रात शदीद आंधी और तूफान आ गया। बरगद का दरख्त ऐसे झूल रहा था जैसे अभी जड़ से उखड़कर उस पर गिर जाएगा। मगर हैरत की बात यह थी कि हिसार के अंदर हवा का एक झोंका भी उसे महसूस नहीं हो रहा था। इसी दौरान उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा कि उसकी मरहूमा माँ सफ़ेद लिबास पहने रो रही है। वो उसके पास गया तो माँ ने कहा, बेटा ये सब छोड़ दे, तू गलत रास्ते पर चल पड़ा है, बहुत नुकसान उठाएगा, बाज आ जा। उसकी आंख खुली तो उसका जिस्म पसीने में शरबोर था। उसने ये ख्वाब बाबा को सुनाया तो उसने ये कहकर टाल दिया कि अमल के दौरान ऐसे वहम और ख्वाब आते रहते हैं। इस तरह 20 रातें गुजर गईं। छोटे मोटे वाक़यात होते रहे, मगर रहीम बख्श अब उनका आदी हो चुका था। उसे लगने लगा था कि वो ये अमल मुकम्मल कर लेगा, मगर वो नहीं जानता था कि असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। 21वीं रात उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। वो रात जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। उस रात जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो माहौल पहले से कहीं ज़्यादा बोझल और वहशतनाक था। हवा भी जैसे सांस रोके खड़ी थी। उसने हिसार खींचा और अमल शुरू किया। अभी 5 मिनट भी न गुजरे थे कि ज़मीन लरजना शुरू हो गई। ऐसा शदीद झलझला कि उसे लगा कब्रें फट जाएंगी, और फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। उसके सामने वाली 4 कब्रों में दरारें पड़ीं और वो एक धमाके से फट गईं। उनमें से खून और पीप में लथपथ कफन पहने 4 मुर्दे बाहर निकले। उनकी आंखों के हल्के खाली थे और उनसे एक ठंडी नीली रोशनी निकल रही थी। वो सब एक भयानक गूंजदार आवाज़ में चिल्लाए, बंद कर दे ये सब, चला जा यहाँ से, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। तेरे इस अमल से हमें तकलीफ होती है। रहीम बख्श का खून रगों में मुंजमद हो गया। उसका दिल चाहा कि भाग जाए, मगर उसने आंखें बंद कर लीं और वजीफा जारी रखा। इतने में एक और कब्र फटी और उसमें से एक लंबे कद का मुर्दा निकला, जिसके हाथ में एक बड़ा सा झंग आलूदा खंजर था। उसका आधा चेहरा गला हुआ था और उसमें से कीड़े रेंग रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता देखकर रहीम बख्श की सांसें उखड़ने लगीं। मुर्दा जब हिसार के करीब आया तो उसने एक ऐसी चीख मारी कि रहीम बख्श को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। फिर उस मुर्दे ने वो खंजर अपने गले पर रखा और धीरे धीरे अपनी गर्दन काटना शुरू कर दी। खून की धारें फूट पड़ीं और उसका सर तन से जुदा होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उस मुर्दे ने अपना कटा हुआ सर बालों से पकड़कर
रहीम बख्श के सामने किया और कहा, अब भी वक्त है, भाग जा। ये मंजर इतना होलनाक था कि रहीम बख्श की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो भागने ही वाला था कि उसे बाबा की बात याद आई, सब नज़र का धोखा होगा, अमल मत छोड़ना। उसने हिम्मत मुजम्मा की और वजीफा जारी रखा, मगर अब जो हुआ उसने रहीम बख्श की हिम्मत की दीवार गिरा दी। उसे अपनी बेटी फातिमा की चीख सुनाई दी, अब्बू मुझे बचा लो। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही मुर्दे उसकी बेटी को पकड़े हुए थे और उनके नोकीले नाखून उसकी गर्दन पर रखे हुए थे। वो चिल्ला रहे थे, अगर तूने ये अमल बंद न किया तो हम तेरी बेटी को तेरे सामने टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये देखकर रहीम बख्श तड़प उठा। वो जानता था कि हिसार के अंदर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर उसकी बेटी, उसकी जान खतरे में थी। वो हाथ जोड़कर चिल्लाया, खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे कुछ मत कहना। अभी वो मिन्नतें ही कर रहा था कि वो बदरूहें उसकी बीवी ज़ैनब और बेटे अली को भी घसीटते हुए ले आईं, और फिर उसकी आंखों के सामने उन्होंने अपने तेज नाखूनों से उनके जिस्मों को नोचना शुरू कर दिया। अपने बीवी बच्चों की दिल खराब चीखें सुनकर रहीम बख्श का दिमाग माउफ हो गया। वो ये भूल गया कि ये नज़र का धोखा हो सकता है। उसके लिए उस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई उसके खानदान की तकलीफ थी। वो दीवानावार हिसार से बाहर उनकी तरफ दौड़ा। छोड़ दो उन्हें कम बख्तो। जैसे ही उसका पहला कदम हिसार से बाहर पड़ा, एक अजीब वाकया हुआ। तेज हवाएं रुक गईं, चीखें खामोश हो गईं और वो तमाम मुर्दे और उसका खानदान धुएं की तरह हवा में तहलील हो गए। कब्रिस्तान में फिर वही मौत का सा सुकूत छा गया और फिर अचानक पूरे कब्रिस्तान से खौफनाक खखों की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर कब्र, हर दरख्त उसकी बेबसी पर हंस रहा हो। वो समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो धोखे में आ गया था। खौफ और पछतावे के मारे वो वहाँ से भागा। पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ते हुए वो रो रहा था और दुआ कर रहा था कि उसके बीवी बच्चे सलामत हों। जब वो झोंपड़ी में पहुंचा तो देखा कि ज़ैनब और बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। ये देखकर उसकी जान में जान आई। वो शुक्राने के नफल पढ़ने लगा, मगर वो नहीं जानता था कि ये सुकून तूफान से पहले की खामोशी है। उसने हिसार तोड़ दिया था, मुआहिदा टूट चुका था। अब मेहमान सिर्फ कब्रिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे, वो उसके घर भी आएंगे। उस खौफनाक रात के बाद जब सुबह हुई तो रहीम बख्श का वजूद खौफ और पछतावे से कांप रहा था। उसे बाबा शोला शाह की बातें याद आ रही थीं, अगर अमल बीच में छोड़ दिया तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो भागम भाग उस जगह गया जहां बाबा उससे मिलता था, मगर वहां कोई नहीं था। उसने सारा दिन जंगल में उसे ढूंढते गुजार दिया, मगर बाबा का कोई सुराग न मिला। शाम को जब वो थका हारा झोंपड़ी में वापस आया तो अपने बीवी बच्चों को हंसते खेलते देखकर उसके दिल को एक लम्हे का सुकून मिला। उसने सोचा, शायद अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, शायद वो सब वाकई एक भयानक ख्वाब था। उस रात उसने आखिरी बार अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। उनके मासूम चेहरों को देखकर उसका दिल भर आया, मगर उसने अपने आंसू छुपा लिए। उसे क्या मालूम था कि वो आखिरी बार उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा है। सब सो गए, मगर रहीम बख्श को नींद नहीं आ रही थी। ठीक रात के 12 बजे बावर्ची खाने से बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज़ आई। रहीम बख्श का दिल धक से रह गया। वो उठने ही वाला था कि उसने देखा झोंपड़ी के दरवाजे से काले साए अंदर दाखिल हो रहे हैं। वही 4 साए, वही हैबतनाक वजूद जो उसने कब्रिस्तान में देखे थे। उनमें से एक साया आगे बढ़ा और एक सरगोशी की जो रहीम बख्श के कानों में जहर की तरह घुल गई। आज हम तेरे मेहमान हैं, कल तक तुम हमारे ठिकाने पर आते थे, आज हम तुम्हारे घर दावत पर आए हैं। रहीम बख्श ने उठने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था। वो हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, जैसे किसी ने उसे नादिदा जंजीरों से जकड़ दिया हो। एक मुर्दा उसके करीब आया और उसके कान में फूंका, आज तू अपनी आंखों से अपनी बर्बादी का तमाशा देखेगा, हम तुझे मारेंगे नहीं, तड़पाएंगे। और फिर वो हौलनाक मंजर शुरू हुआ। उन मर्दों ने सोई हुई फातिमा की गर्दन में अपने नाखून गाड़ दी। एक दिल खराश चीख से झोंपड़ी गूंज उठी, जिससे ज़ैनब और अली भी दहशतजदा होकर जाग गए। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बाकी मुर्दों ने उन पर हमला कर दिया। रहीम बख्श बेबसी से सब कुछ देख रहा था। वो अपनी बीवी और बच्चों को चीखता, तड़पता और अपनी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े होते देख रहा था, मगर वो 1 इंच भी हिल न सका। उनकी चीखें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गईं।
और झोंपड़ी के फर्श पर खून और गोश्त के लोथड़ों के सिवा कुछ न बचा। जब वो मुर्दे चले गए तो रहीम बख्श के जिस्म की कैद खत्म हुई। वो ढाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी दुनिया, उसकी कायनात, सब कुछ चंद लम्हों में तबाह हो चुका था। सुबह हुई तो उसने अपने कांपते हाथों से अपने प्यारों की बिखरी हुई लाशों को इकट्ठा किया और जंगल में ही 3 छोटी कब्रें खोदकर उन्हें दफना दिया। अब उसके अंदर का खौफ मर चुका था। उसकी जगह एक जलती हुई आग ने ले ली थी। गुस्सा, नफरत और बदले की आग। उसे बाबा शोला शाह पर शदीद गुस्सा था, मगर वो जानता था कि अब उन कव्वतों से निजात पाने या उन्हें काबू करने का एक ही रास्ता है, उस अमल को मुकम्मल करना। जिस औलाद की खातिर उसने ये सब शुरू किया था वो तो रही नहीं थी। अब वो ये अमल अपनी तस्कीन के लिए, अपनी बर्बादी का इंतकाम लेने के लिए मुकम्मल करना चाहता था। वो ज़रूरी सामान लेकर उसी रात कब्रिस्तान पहुंच गया। उसने हिसार खींचा और अमल शुरू किया। कुछ ही देर में वही मुर्दे कब्रों से निकल आए। तू फिर आ गया, अपनी बीवी बच्चों को मरता देखकर भी तेरा दिल नहीं भरा। मगर आज रहीम बख्श की आंखों में खौफ नहीं, वहशत थी। उसने अमल जारी रखा। उन मुर्दों ने उसे डराने की हर मुमकिन कोशिश की, भयानक शक्लें बनाईं, अजियतनाक आवाज़ें निकालीं, मगर रहीम बख्श पर कोई असर न हुआ। जिसका सब कुछ लुट जाए उसे किस चीज़ का डर। दिन गुजरते गए, रातें बीतती गईं। वो हर रात अजियत सहता मगर डटा रहता। आखिरकार 41वीं रात आ गई। ये फैसला कुन रात थी। इस रात उन तमाम कुर्बानियों का नतीजा मिलने वाला था। अमल शुरू होते ही बदरूहों ने अपना आखिरी और सबसे ताकतवर वार किया। रहीम बख्श ने देखा कि उसके सामने उसकी बीवी और बच्चे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब्बा, हम जिंदा हैं, हमें आकर यहाँ से ले जाएं। एक लम्हे को रहीम बख्श का दिल पिघल गया। वो दीवानावार उठा कि जाकर उन्हें गले लगा ले, मगर जैसे ही उसने हिसार से कदम बाहर निकालने का सोचा, उसे उनकी खून में लथपथ लाशें याद आ गईं। उसे होश आया कि ये आखिरी धोखा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो अपनी जगह से न हिला। वो हसरत भरी निगाहों से अपने खानदान के अक्स को देखता रहा और वजीफा पढ़ता रहा। जैसे ही उसने आखिरी लफ्ज़ अदा किया, सब कुछ गायब हो गया और वो चारों मुर्दे उसके सामने हाथ जोड़े, सर झुकाए खड़े थे। वो चिल्ला रहे थे, आका, हम आपके गुलाम हैं, हुक्म कीजिए आका। अमल मुकम्मल हो चुका था। उसे वो शैतानी ताकत मिल गई थी, मगर उसकी कीमत उसने अपने खानदान की जान देकर चुकाई थी। उसके बाद, जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया, उसका चचा रहीम बख्श अपने इलाके का सबसे मशहूर आमिल बन गया। उसके पास दौलत की रेल पैल हो गई। उसने एक आलीशान बंगला बनाया, मगर उसमें रहने वाला वो अकेला था। लोग दूर दूर से अपने मसाइल लेकर आते और वो उन मुर्दा गुलामों की मदद से उन्हें हल कर देता। वो एक शरीफ आदमी था, इसलिए कभी किसी का नाजायज़ काम नहीं करता था। मगर काला इल्म तो काला इल्म है। वक़्त के साथ साथ उस काले इल्म के असरात उसके चेहरे पर जाहिर होने लगे। उसकी शक्ल बिगड़ती चली गई, इतनी बदसूरत और हैबतनाक कि लोग उसे देखकर डरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसके पास आना छोड़ दिया। वो अपने आलीशान वीरान बंगले में अकेला रह गया, हर रात अपनी बीवी और बच्चों को याद करके रोता। फिर एक दिन उसकी पुरअसरार मौत हो गई। कई दिन तक किसी को खबर न हुई। जब बंगले से बदबू आने लगी तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर उसकी लाश पड़ी थी, जिसकी हालत इतनी खौफनाक थी कि देखने वालों की चीखें निकल गईं। वो बंगला आज भी उसी गांव में वीरान खड़ा है। लोग कहते हैं कि रात को वहां से चीखों और कहकहों की आवाज़ें आती हैं। कोई उस बंगले को खरीदने की हिम्मत नहीं करता, न ही कोई उसके पास से गुजरता है। रहीम बख्श ने गरीबी से निजात पाने के लिए एक शॉर्टकट अपनाया था, एक ऐसा रास्ता जो ताकत और दौलत की तरफ तो जाता था, मगर उसकी मंजिल सिर्फ तबाही, तन्हाई और एक अजियतनाक मौत थी। काला इल्म एक ऐसा समुंदर है दोस्तों, जिसकी हर लहर किनारे पर सिर्फ लाशें और वीरानी ही लाती हैं।